Good morning, children. How are you? Today we'll learn the poem lesson number 5. Before that, I will tell you something about, you know me now. There is no need to tell my name, but I still again and again I am telling. I am Sister Elta, Catholic Mission High School Secondary. Today we will learn the lesson number 5. Lesson number 5 is a poem. The Mizar and his gold. The Mizar and his gold. कसू और उसका सोना. कसू और उसका सोना. Before that, I am telling you the think of any popular saying about a mizar in English or Hindi. Think of any popular saying about a mizar and his English or Hindi. अंग्रेजी और हिंदी एक बार कसू के बारे में कोई प्रसिद्ध कहावत सोचे. अंग्रेजी और हिंदी के बारे में कसू और इसके बारे में प्रसिद्ध कहावत सोचे. Children, avarice is the root of evil. Avarice is a root of evil. लालच सभी बुराई की जड़ है. लालच सभी बुराई की जड़ है. Avarice is the root of all evil. लालच एक बुराई की जड़ है. Okay? The Mizar and his gold. The poem has written Jane Taylor and Ann Taylor. This is the poem. Okay? Who has written this poem? The poem has written by Jane Taylor and Ann Taylor. This poem is written by Jane and Ann Taylor. Children, now open your textbooks. We'll learn the poem. First, I will read the paragraph. Pay attention and point out where I am reading. There you have to point out. And each word you have to point out your finger. Then only you will able to learn the poem today. Within a hole which he had made, a mizar kept his treasure. Treasure का मतलब खजाना. He came to see it every day. This was his only pleasure. Pleasure means प्रसन्नता. कसू एक नाम का व्यक्ति था. उसने गड्ढे में क्या रखा था? गड्ढा बनाकर अपना खजाना उसमें रखा था. वो हमेशा देखने के लिए आता था और वही देखकर उसकी प्रसन्नता का एकमात्र कारण बनता था. वही देखकर उसका प्रसन्न का एकमात्र बन जाता था. विदिन अ होल. विदिन अ होल. होल का मतलब गड्ढा. गड्ढा which he had made. एक कसू नाम के व्यक्ति ने गड्ढा बनाया था. उसमें अपना खजाना रखा था. वो प्रतिदिन वो खजाना देखने के लिए आता था. उसी में उसकी प्रसन्नता और एकमात्र बन जाता था. समझ में आया? ओके. सेकेंड. Now it changed that once
the robber came back the very same night and took away his gold. एक अवसर ऐसा आया कि वह जब घुटने पर गड्ढे को पास बैठा, उस समय निर्दयी डाकू ने उससे क्या करा, उसी रात को आके उसका सारे जेवर गहने ले गया। देखो क्या करा, एक चोर आदमी आके उसने देखा जहाँ पे खजाना रखा था, उससे उसी रात को वो खजाना चोरी कर ले गया। When the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter that the neighbor all came running up to ask what was the matter. जब बूढ़े व्यक्ति ने पाया कि उसका क्या सारा खजाना चुका है, उसने इतना भयंकर शोर किया कि सारे पड़ोसी यह पूछने लगे आए और उसके मामले में क्या था, पूछने के लिए आए और उसके मामले में क्या था। जब व्यक्ति ने क्या करा, वो खजाना देखा कि खजाने में से क्या हो गया है, सब चोरी हो चुकी है। उसने क्या करा, भयंकर चोर मचाया। Last night he said a robber took. उसने बताया कि बीती रात एक डाकू ने मेरा सोना ले लिया। My gold and away. He ran within her, said the neighbor. Before the gold was gone, pray and tell us what he did with it. Okay? I came every day to see it, and now what can I do? He said. उसने कहा कि मैं प्रतिदिन उसे देखने आता था और अब मैं क्या कर सकता हूँ। You can come every day, is a friend replied, and look at the hole instead. उसके मित्र ने बोला, जब भी तुम रोज आते देखकर उस खड्डे को दिखाया करो। समझ में आया? दिस पोएम is a very meaningful to learn. Once again I will read and then I will explain. Okay? Lesson number 5. The Miser and his Gold, as written by Jane Taylor and Ann Taylor. Jane Taylor and Ann Taylor has written this poem about the treasure. Within a hole which he had made, a Miser kept his treasure. He came to see it every day. This was his only pleasure. Now it changed that once, as he knelt by the hole, he was seen by a robber bold, and the robber came back the very same night and took
took away his gold. When the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter that the neighbors all came running up to ask what was the matter. Last night, he said, a robber took my gold, and away he ran with it, said the neighbor. Before the gold was gone, pray tell us what you did with it. I came every day to see it, and now what can I do? He said, you can come every day, his friend replied, and look at the old instead. I have written here, within means may, mizar, kasum. Jail means अवसर, net means गुडना पर, matter means मामला, neighbor means पड़ोसी, instead के स्थान पर, hold means गड्ढा, a treasure खजाना, gold सोना, platter शोर, role means भूमिका, pleasure प्रसन्नता, बोल निडर, मैटर में मामले की बात. Understood? Avarice is the root of all evil. लालच सभी बुराई की जड़ है. लालच सभी बुराई की जड़ है. Think of any popular saying about मिज़ार in English और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी में एक कसूर के बारे में कोई प्रसिद्ध कहावत सोचे. अंग्रेजी और हिंदी कसूर के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत सोचिए. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? देखो, एक कसू नाम का व्यक्ति था. उसके पास बहुत खजाना था. उसने एक दिन अपना खजाना भूमि में एक खड्डा बनाकर उसमें गाड़ दिया और उस खड्डे को प्रतिदिन देखने के लिए आता था और देख के उसका प्रसिद्ध उसी में प्रतिदिन आकर देख के चला जाता था. परंतु उसको पता नहीं, जिस दिन उसने अपना खजाना उसी में गाड़ दिया, उसी रात में एक चोर डाकू आके उसने क्या करा, चोरी करके ले गया. और दूसरे दिन आके देखा तो खजाना नहीं है. तो क्या करना, उसने चोर मच्छर बहुत आवाज चिल्लाया. पड़ोस अड़ोस के लोग आके पूछा कि क्या हो गया. उसने बोला कि मेरा खजाना चोरी हो गया. देखो बच्चे, हम भी जब भी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं और हम अच्छी तरह से उसको रख देते, जब भी चोरी होती तो हमको बहुत दुख लगता है. वैसे कसू को भी बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा और वो दुख के कारण अपना बहुत दुखित रह गया, क्योंकि इतने अपने मेहनत से उसने वो खजाना रखा था और उससे चोरी हो गया. जैसे अपने भी घर में जो अच्छी वस्तु होती है, सोने की, चांदी की, और जो भी अपनी चोरी होती है. जैसे बच्चे देखो, स्कूल में अपना किसी ने पेन और कोई अपना नोटबुक और
जो भी चोरी हो गया कि अपने को बहुत दुख लगता है, वैसे कसूर को भी बहुत दुख हो गया। बच्चे ये पोएम अच्छी से सीखना और पढ़ना, उसकी स्पेलिंग और याद करना। मैं पूछूंगी, उसके क्वेश्चन आंसर मैं लिख के दे दूंगी आपको। और इस लेसन के बाद आप मेरे को कॉपी चेक करने के लिए आएंगे। साथ ही साथ आप कॉपी चेक करके आपका रजिस्ट्रेशन भी करना। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हम कॉपी चेक नहीं करेंगे, मैं कॉपी चेक नहीं करूँगी। और जो भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप आके बताना कि सिस्टर हमको ये समझ में नहीं आया, मैं वापस एक्सप्लेन करेंगे, वापस आपको बताएंगे। ये पोएम सीखना, आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ना, जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपके लिए आपका ज्ञान बढ़ाने का है। तो आप अच्छी तरह से पोएम जो भी पढ़ाई है, सभी विषय की पढ़ाई अच्छी तरह से करना ये लॉकडाउन में, और सीखना, बीमार मत होना। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ओके।